आज हमें लास्ट लेक्चर में जो हमने मैग्नेटिक फील्ड ये टॉपिक शुरू किया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक हमने शुरू किया है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, छोटा नहीं मोटा सा इंट्रोडक्शन हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, isn't it? That how a wire which is carrying a current, which is carrying a charge, when there is a charge which is in motion, and hence it is creating some current in the wire, and that wire is now creating magnetic field around it, isn't it? हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि जो भी चार्ज होता है, the fundamental, the basic, the fundamental property of matter, a particle of matter, जिसे हम एटम्स कहते हैं, और एटम्स के अंदर फिर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, मतलब ये चार्जेस होते हैं। अब ये चार्ज का प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो होता है वो स्टैटिक या फिर मोशन, मतलब इट मींस दैट इफ एनी चार्ज इज रेस्ट or it is at motion, it doesn't matter, but it will create electric field around it, isn't it? Yes or no? Yes sir. ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा है कि कोई भी चार्ज अगर रेस्ट में हो या फिर मूवमेंट में भी होगा, मोशन में भी होगा, तो भी वो क्या करेगा, अपने आजू बाजू के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। सिमिलरली इन दैट मैनर दैट पर्टिकुलर चार्ज हैज वन मोर प्रॉपर्टी। चार्ज को एक और सर्टेन प्रॉपर्टी होता है, वो क्या है कि whenever any charge is in motion, it will again create magnetic field around itself। वो क्या करता है कि कोई भी चार्ज अगर मोशन में अगर होगा, then it will create magnetic field too। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो उसको परपेंडिकुलर होने वाली, हम लोग देखने वाले हैं, there is a relation between electric field and magnetic field, the direction of electric field as well as magnetic field, they are both perpendicular to each other। ये बाद में देख लेंगे हम लोग, but still important point is that a moving charge creates a magnetic field around itself, and hence हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई भी कंडक्टर या फिर कोई भी करंट से अगर करंट पास हो रहा है, इसका मतलब क्या कि चार्ज पास हो रहा है, isn't it? If we are saying that current is nothing but the flow of charge, so if there is a current which is passing through some wire, it means that there is a charge which is flowing in that wire. It means that the charge is in motion, and hence that wire will show magnetic properties। Yes or no? बोलो। Yes sir. Yes sir. इतना हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा था कि क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो बायो-सैवर्ट्स लॉ करके हमने एक इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, जो बताता है हमें कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज करंट कैरिंग वायर। सपोज हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, सपोज देयर इज अ वायर which is carrying some current through it, ठीक है? Then what बायो-सैवर्ट्स say that around this wire what will happen, since this wire is carrying current with it, it means that it will create some magnetic field around it। बराबर, इसके आजू बाजू के रीजन में ये वायर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। इसके मतलब क्या कि if we consider any point in this region, suppose यहाँ पे कोई पॉइंट अगर कंसीडर करते हैं पॉइंट P, let's name it point P, then yes it is yes we can find, we are able to find the magnetic field at point P, so it makes sense, ठीक है? The question that can you find the magnetic field at point P is little bit question, it makes sense, yes or no? Because there is magnetic field around this wire। बोलो। Yes sir. Yes sir. अभी कैसे फाइंड करते हैं? So बायो-सैवर्ट्स told us कि जो magnetic field due to whole wire है ना, suppose if finite wire है या फिर infinite wire, it doesn't matter। क्यों? The important thing is magnetic field due to this whole wire at this point is not easy to calculate। ये इतना easy नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, ये आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले, but it's not that easy। But what बायो-सैवर्ट्स generalize कि yes, if we consider any small portion of this wire, suppose हम लोग इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं जिसका लेंथ होगा dl, okay, and if we join that portion to the point, if we consider this distance to be r, vector r, which is originating from the small element towards the point at which we have to calculate the magnetic field, then bayo-saiworts told us that yes, due to this small element of this wire, it is possible to find the magnetic field at this point। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, अभी ऑब्वियसली अगर हमने स्मॉल एलिमेंट अगर कंसीडर किया है वायर का, तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट बी पे वो भी वेरी स्मॉल होगा, therefore we are writing dB। so this magnetic field can be calculated using the formula mu0/4 pi into I dl cross r bar
divided by r cube. Yes or no? This was the vector form of that formula. And then in the magnitude you can write mu naught upon 4 pi. तो ये dv वेक्टर होगा. In magnitude you can write mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. ये r कैंसिल हो जाएगा, इसलिए r square आ जाएगा. ये सर ये हमने उस दिन देखा था. Very important thing is theta is the angle between this r vector and dl vector. ये दोनों इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है. मतलब क्या कि जो क्रॉस प्रोडक्ट में हम sin थीटा कंसीडर करेंगे, that particular theta is the angle between dl bar and r bar. Yes or no? बोलो. Yes, sir. Yes. So we have this r bar. Do we have dl bar? Yes. This is the small element dl. And उस दिन हमने देखा था कि जो dl होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा. What is the direction of dl bar? I told you that the direction will always be in the direction of current. जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में dl bar का डायरेक्शन होगा. Isn't it? जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में बोलो. Yes, sir. And whatever the angle between both these, that angle theta is considered here. Is that okay? इतना हमने देखा था. Yes, sir. सबको याद है? कोई इसमें कुछ डाउट था क्या? किसी को डाउट? एनी डाउट्स हियर? उसके बाद हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा. सपोज एक पॉइंट भी है. टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट वी डू? वी यूज द राइट हैंड पाम रूल. इजंट इट? डायरेक्शन ऑफ करंट के अलोंग हम लोग अपना थंब प्लेस कर देंगे एंड द डायरेक्शन ऑफ आवर कर्लिंग हैंड्स विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट. तो देखो पॉइंट पी की तरफ मेरे फिंगर जो है वो अंदर जा रहे हैं. यस और नो? सर वो रेडियस क्यूब क्यों आया, आर क्यूब? ये आर. हाँ, आर क्यूब क्यों आया उधर? फॉर्मूला में आर क्यूब कैसे आया? नहीं देखो देखो, दिस इज द गिवन फॉर्मूला. ओके, ये प्रूव नहीं किया है हमने. वी हैवंट प्रूव्ड इट. ठीक है, ये ऐसा इंफॉर्मेशन उसने दिया था बायो सैवर्ट्स ने. बायो सैवर्ट्स यूज दिस टाइप ऑफ गिव दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, वी हैवंट प्रूव्ड इट येट. इसको हमने प्रूव नहीं किया है. ये फॉर्मूला बस दिया है बायो सैवर्ट्स ने और वो उसी का यूज हमें करना है आगे. आर यू गेटिंग? यस सर. हाँ. तो अब यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया क्या? एवरीथिंग? हाँ सर. एनी डाउट्स हियर? सो डायरेक्शन यहाँ पे करंट का डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड्स. इजंट इट? डायरेक्शन एट दिस पॉइंट P, द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स द प्लेन. यस और नो? यस सर. और यहाँ पे कहीं पे अगर पॉइंट Q कंसीडर कर दिया तो इस पॉइंट पे क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट अलोंग विद थंब. अगर हमने हाँ एंड सोल्व किया तो क्या हो रहा है? Q पॉइंट से अपना हाथ जो है बाहर निकल रहा है. देखो फिंगर सर्किल का फ्रॉम द प्लेन. So it means that at point Q, the direction is outwards, or at point P, the direction is इनवर्ड. inwards. समझ में आ रहा है क्या? यस सर. Everybody is okay? बोलो जल्दी. ये तो Yes, sir. आप लोगों के चेहरे से थके हुए दिख रहे जैसे सुबह से लेक्चर कर रहे हो आप. हाँ. ओके फाइन. सो कमिंग टू आवर फर्स्ट डेरिवेशन. अभी ये जो यही डेरिवेशन हमें करना है. दैट द सेम क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व नाउ. दैट कि अगर सपोज होल वायर की वजह से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा किसी पॉइंट पे तो क्या करना है वो अभी डेरिवेशन देखते हैं. सो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है क्या है?
तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। अभी हमें ये देखना है, सारे सारे ऑप्शन, सारे पॉसिबिलिटीज हमें कवर करना है, ठीक है। फर्स्ट विल सी व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, फिर इनफाइनाइट लेंथ और फिर सेमी इनफाइनाइट लेंथ। विल सी ऑल these possibilities, but first let us consider that whatever wire we have it is finite, okay, it has a finite length, मतलब वो infinite wire नहीं, बहुत बड़ी वायर नहीं, वो finite wire होगी जिसका end point, both the end points we know, is that okay? So now let us consider this wire, okay, suppose that this wire is a finite length, ये एक wire है जिसके ये दो end point होते हैं, okay, so now this wire is a finite, this wire is having finite length. Suppose that this wire is carrying current I through it, इस वायर से I in the current suppose pass हो रहा है, so obviously due to there are charges which are in motion in this wire, what will happen, these charges or this current will produce magnetic field around it, yes or no, bolo? Yes, sir. Means it's Yes, possible sir. to find the magnitude of magnetic field or the direction of magnetic field at any point around this wire. Suppose let us consider any general point P. Let us consider any general point at this wire. कोई भी point, कोई भी ऐसे जनरल सा point हम लोग consider करते हैं. Suppose this is the point P at which we have to find the magnetic field. जब अच्छे से देखो, हाँ बहुत अच्छे से समझ लो इसे, इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री हमें यूज करना है. So again, what we do according to Biot-Savart's के हिसाब से obviously इस पूरे वायर की वजह से इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो इतना आसान नहीं होगा. It is not that easy. But yes, according to Biot-Savart's, what is possible if we consider any small element of this wire, इस वायर में छोटा सा element कहीं भी अगर हम कंसीडर करते हैं, तो that element magnetic field can be. क्या है तेरे को इतना? तुम दोनों पागल हो यार. राजीव, ओके, तो अपना माइक बंद रखो, ठीक है, अगर कुछ डाउट होगा तो पूछो. तो नाउ लेट्स कंसीडर एनी स्मॉल एलिमेंट. सपोज एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं. आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बराबर ना? हेलो एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिखाई दे रहा है कि नहीं? हेलो. Yes, sir. हाँ. Okay, so let us consider this small area, small length, small element of this wire. Okay, let us say that this element has a length dl. इस small element का length जो होगा वो dl होगा. If we are considering dl as a vector, then obviously we know that dl vector will have the direction in the direction of current. जिस direction में current जा रहा है उसी direction में dl vector भी जाएगा, बराबर? So let's say this is the dl vector which is having the direction in the direction of current, that is upward. Now what we do, we join this dl vector to this point, yes or no? According to Biot-Savart, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इस dl vector को जैसे ज्वाइन कर देना है बस. इधर हो गया. एक इस वेक्टर को हमने ज्वाइन कर दिया, ये उस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, बिकॉज़ वी नीड टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल वेक्टर, स्मॉल एलिमेंट dl. yes or no? बोलो. मान लेते हैं ये जो वेक्टर है ये r है, इसका मतलब क्या, ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा, r यूनिट कितना होगा, yes or no? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. हाँ. तो व्हाट इज द फार्मूला, क्या है फार्मूला हमारे पास, बोलो. तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट को ऐसे अगर पॉइंट P के अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है होगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा. विल जस्ट टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड. ओके एवरीवन, पे अटेंशन हियर कि यहाँ पे जो भी हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, जो भी कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं,
वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए करने वाले हैं, बिकॉज फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी इजी, वी कैन यूज जस्ट यूज अवर राइट हैंड palm rule, yes or no? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये dB क्या होगा? Magnetic field at point P due to the small element. What is that? Mu naught upon 4 pi I ds sin theta upon r square. Yes or no? Yes. Yes, sir. बराबर? हाँ. But since do we know this theta? हमें ये theta पता है क्या? नहीं. Everyone? No, sir. फटाफट से आंसर दो यार. देखो. हाँ, हमें ये थीटा पता है क्या? बिकॉज दिस थीटा इज वेरिएबल, इजंट इट? कि अगर हम लोगों ने अलग-अलग एलिमेंट्स अगर इस वायर की कंसीडर करिए तो ये थीटा वेरी हो सकता है। ये सब नो, अगर मैंने ये एलिमेंट कंसीडर किया है, अब मैंने सपोज ये एलिमेंट कंसीडर कर लिया, किसी और ने, खुशी ने सपोज यहाँ का एलिमेंट अगर कंसीडर कर लिया, तो फॉर ऑल थ्री ऑफ अस थीटा विल वेरी, यस और नो? Yes, sir. बट हमें क्या चाहिए? एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए थीटा की, इजंट इट? कि जो वेरी ना हो सके मोस्ट पॉसिबली। तो हम लोग क्या करेंगे? लेट अस नाउ डू सम ज्योमेट्री, काम करते हैं, कुछ एल्गोरिथम को परफॉर्म करते हैं। फर्स्टली लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P टू दिस वायर। एक काम करते हैं, पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस वायर पे। तो व्हाट इज नाउ दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये सब लोग Yes, sir. मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है ना, ये a यूनिट इतना है। सपोज दैट this particular length, that is the distance from wire to this point, perpendicular distance from wire to this point is 8 units. Can we assume that? बताओ। Yes, sir. And now we suppose that, let's assume कि ये जो एंगल है ना, this angle is theta. मान लेते हैं कि ये एंगल कुछ होगा, थीटा होगा। तो व्हाट इज दिस एंगल नाउ? ये एंगल क्या हो सकता है बताओ? If this is 90, this is theta, then what is this angle? 90 minus theta, ये तो Yes, sir. एक ट्रायंगल है ना, तीनों साइड का एडिशन कितना चाहिए? 180 डिग्री चाहिए। 90 minus theta plus 90, ये 180, और ये plus theta, theta क्या है? Isn't it true or not? Yes, sir. everyone? Yes, sir. खुशी, अभय, राजीव, हरदेव, मीत? Yes, sir. जल्दी रिप्लाई दिया करो आप लोग। हाँ, ओके, so this angle is 90 minus theta degree, okay? So then we can replace here. अब ये जो sin theta होगा, ये sin theta क्या था? Theta was the angle between TL and vector R, yes or no? So hence we can now write here 90 degree minus theta, yes or no? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. so what is 90 minus theta क्या होता है बताओ? 90 minus theta क्या होता है? cos theta ना? Isn't it? अरे sin a minus b का फॉर्मूला यूज करो। sin a cos b minus cos a sin b, sin 91 cos b cos theta minus cos a, मतलब sin cos 90 0, the second element 0 हो जाएगा, yes or no? Can you do that? ये कर सकोगे ना? Yes, sir. हाँ, okay. So now what we got the magnetic field due to any element at this point P. बराबर, अब ये थीटा चेंज नहीं होगा, अब ये थीटा क्या होगा? वो we know that because you know whenever we draw perpendicular, हम लोग हमेशा perpendicular से वो एंगल मेजर कर सकते हैं, सब लोग, it won't change now. अगर सपोज हम लोगों ने ये जो एलिमेंट यहाँ पे भी कंसीडर कर लिया, still we can now you know take the angle from this perpendicular to here, yes or no? Yes, sir. हाँ, अब और एक ज्योमेट्री परफॉर्म करते हैं, एक और करते हैं कि सपोज नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। हमारा टास्क क्या है ये मत भूलना, ठीक है? हर पॉइंट पे हमारा टास्क क्या होता है कि वी हैव टू फाइंड B, दैट इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस होल वायर। इस पूरी वायर की वजह से हम लोग
हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अभी फिलहाल हमें इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो मिल गया है। इट मींस वी आर ऑन द हाफ वे। अभी हाफ वे जो है वो पूरा करना है। तो अब क्या करेंगे, सिंस वी नो दैट दिस वायर हैज अ फाइनाइट लेंथ, ये तो ये वायर जो है वो फाइनाइट लेंथ की वायर है। बोलो खुशी, अभय, राजीव, हरदेव, मीत, यस और नो? Yes, sir. Okay, so it means that we can join point P to the end point, क्योंकि ये फाइनाइट लेंथ है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ये पॉइंट ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया और इसको ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दिया, बराबर? ऐसा नो, we can now join it। Yes, sir. अब लेट अस अज्यूम, चलो अब एक काम करते हैं कि दोनों दोनों ये जो लाइन बनी है ना, जो कि इन पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, इन दोनों के एंगल्स को एज्यूम कर लेते हैं। सपोज हम लोग यहाँ से, मतलब ये जो अपना परपेंडिकुलर है ना, इसको रेफरेंस लेके हम लोग यहाँ से एंगल मेजर करेंगे। सपोज फ्रॉम हियर दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ, लेट्स से यहाँ से मेजर किया, अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो एंगल होगा ये phi1 होगा। कैन वी अज्यूम दैट वी कैन मेजर एंगल फ्रॉम हियर, ऐसे 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 जाके phi1, यस और नो? यस सर। Yes, sir. और ऐसे ही क्या करेंगे, ये जो सेकेंड लाइन होगा इसका भी एंगल मेजर करते हैं। तो लेट अस सपोज दैट यहाँ से ऐसे मेजर किया हमने, ऐसे इस डायरेक्शन में, ओके, फ्रॉम दिस टू ऐसे ऐसे मेजर कर देंगे। मान लेते कि ये जो एंगल बना ये phi2 बना। कैन वी अज्यूम दैट? बोलो Yes, sir. व्हाट वी डू। हमने जो अभी जस्ट क्या किया कि हमें देखो पूरी वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालनी है। ओके, टू फाइंड दैट व्हाट वी आर डूइंग कि हमने इस पॉइंट को दोनों एंड पॉइंट से जॉइन कर दिया, और जो भी लाइन क्रिएट हुई है, जो भी साइड्स क्रिएट हुई है, उनका एंगल इस परपेंडिकुलर को रेफरेंस लेके मेजर किया। तो ये जो बड़ा लाइन है ऊपर वाला, इसको हमने यहाँ से ऐसे मेजर किया तो हमें phi1 एंगल मिला। और ये जो नीचे वाला है इसको हमने वापस परपेंडिकुलर से ऐसे निचली तरफ मेजर किया तो ये phi2 एंगल मिला। इज दैट ओके Yes. एवरीवन? समझ में आ रहा है? ओके, यस सर। सो व्हाट वी कैन डू नाउ, हम लोग क्या कर सकते हैं? ओके, टू गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? अगर ये स्मॉल एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है एंड इफ वी हैव टू गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, दिस होल मैग्नेटिक फील्ड, what we need to do, we just need to integrate this dv, yes or no? Yes, sir. To get total magnetic field, what we do, we just integrate dv, yes or no? पूरा इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ से, इंटीग्रेशन ऑफ mu naught upon 4 pi into I cos theta upon r square। dl को मैं से बाहर नहीं चलेगा क्योंकि ये तो इंक्रीमेंट है ना, स्मॉल स्टफ है। Yes, बट sir. स्टिल वन इंपॉर्टेंट थिंग, अभी यहाँ पे हमें कुछ लिमिट पुट करनी पड़ेगी, ये तो ऐसे ही तो नहीं इंटीग्रेट कर सकते, ये तो इंडेफिनेट इंटीग्रल है। वी नीड टू मेक इट डेफिनेट, मतलब क्या कि हमें लिमिट पुट करनी पड़ेगी। बताओ तो क्या लिमिट होगा, एक बताओ कि इफ वी कंसीडर दिस एंगल, अगर इन एंगल्स को अगर हमने कंसीडर किया एज लिमिट, तो बताओ तो अपना जो वायर है वो कहां से कहां तक जा रहा है? इज इट गोइंग फ्रॉम phi2 टू phi1 और phi1 टू phi2? नीचे से ऊपर जाओ, Phi2 to phi1. phi2 टू phi1, बराबर ना? यहाँ से यहाँ तक का एंगल phi2 और यहाँ से यहाँ तक का एंगल phi1, ये तो Yes, sir. देखो अच्छे से वापस देख लो, हमें पूरा या इस पॉइंट से, मैं इस पॉइंट पे अपना एल्बो रख रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट डी पे, और हमें अभी क्या करना है कि पूरा वायर जो है वो ट्रेस करना है। तो देखो कैसे हो रहा है, मैं यहाँ से एक पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर तक आया, कितना एंगल कैन हुआ, कितना एंगल ट्रेस हुआ, phi2 एंगल ट्रेस हुआ, ये तो नो? Yes, sir. और वहां से और कंटिन्यू किया ऊपर की तरफ, तो ये कौन सा एंगल ट्रेस हुआ? phi1 एंगल ट्रेस हुआ।
So is it going from phi 2 to phi 1? Yes, sir. To trace whole wire, we need to go from phi 2 to phi 1. Yes or no? But still there is a small change. एक और छोटा सा चेंज होगा. याद रखो कि हमारा जो डायरेक्शन था एंगल ट्रेस करने का वो अपोजिट है. Look, in this case where we are going from perpendicular to upward, perpendicular से upward जा रहे हैं हम लोग, तो phi 1 एंगल ट्रेस हो रहा है. करेक्ट? Yes or no? Yes, sir. और उसका डायरेक्शन भी सेम है. देखो जिस डायरेक्शन में हमने एंगल ट्रेस किया है उसी डायरेक्शन में मेरा हाथ जा रहा है. Yes or no? Yes, sir. बट स्टिल इन दिस केस, अभी निचले की केस में देखो क्या हो रहा है कि जिस डायरेक्शन में मेरा हाथ जा रहा है हमने एंगल उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया. यस और नो? एंगल वी हैव मेजर्ड इन दिस सेंस, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, बट मेरा हाथ जो होगा ट्रेस करने के लिए वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है. यस और नो? Yes, sir. तो क्या हो रहा है कि phi 2 के लिए, जस्ट फॉर phi 2, the direction of measuring the angle and the direction in which the phi 2 angle is traced are opposite. इसका मतलब हमें phi 2 को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? बोलो. Negative. नेगेटिव लेना पड़ेगा ना. सपोज हम लोग मान लेते हैं कि नीचे से ऊपर का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है. So if we are going from downwards to upwards, if we are going from downward to upward, it's a positive direction. It means कि क्या होगा phi 2 के लिए, मतलब नीचे से परपेंडिकुलर तक जाने के लिए phi 2 एंगल जो ट्रेस किया है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और हम लोग उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. इसका मतलब phi 2 एंगल जो है वो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा. यस और नो? Yes, sir. और बाकी का ऊपर का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखो ऊपर phi 1 जिस डायरेक्शन में ट्रेस किया है उसी डायरेक्शन में हमारा हाथ जा रहा है, उसी डायरेक्शन में हम भी ट्रेस कर रहे हैं. So there is no problem in case of phi 1. There is a problem, slight problem in case of phi 2, that the angle, the direction in which we have measured phi 2 is opposite to the direction of our measurement. Yes or no? Yes, sir. तो इसका लिमिट क्या होगा फिर? माइनस phi 2, मतलब यहाँ से यहाँ तक माइनस phi 2, बिकॉज phi 2 की पॉजिटिव डायरेक्शन है ऊपर से नीचे और हम लोग जा रहे हैं नीचे से ऊपर. इसका मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर तक माइनस phi 2 और उसके ऊपर फिर phi 1. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. बोलो जल्दी. आर्या, भाई, राजीव, Yes, sir. मेरी समझ में आ रहा है? देखो वापस मैं एक बार बोल रहा हूँ कि जिस डायरेक्शन में, देखो हमने रेफरेंस Yes, क्या sir. लिया था, ये इंपॉर्टेंट है. रेफरेंस परपेंडिकुलर लिया था. ये जो निचले वाले लाइन है हम लोगों ने ऊपर से नीचे ऐसे डायरेक्शन में ट्रेस किया था. बट नाउ व्हाइल ट्रेसिंग द होल वायर वी आर गोइंग फ्रॉम डाउन टू अप इन वन यूनिक डायरेक्शन व्हिच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ phi 2. और इसलिए हमने क्या किया कि phi 2 को नेगेटिव लिया, phi 1 को नेगेटिव क्यों नहीं लिया? बिकॉज फ्रॉम परपेंडिकुलर टू अपवर्ड phi 1 जिस डायरेक्शन में मेजर किया है उसी डायरेक्शन में हम लोग ट्रेस कर रहे हैं. इज दैट ओके? Yes, sir. बस अभी इसको इंटीग्रेट करना है. बट स्टिल इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, एक बात बताओ, ये जो लिमिट्स है, लिमिट्स ये किसके है? ये थीटा एंगल के लिमिट है. ये सब लोग बोलो. Yes, ये sir. एंगल की लिमिट है ना. these are angles. phi 2 and phi 1 are nothing but angles. ये सब लोग. Yes, sir. इसका मतलब क्या कि हम लोगों को इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा करना पड़ेगा. ये सब लोग एंगल के विथ रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि लिमिट तो एंगल की दी हुई है. ये सब लोग बोलो जल्दी. Yes, sir. हेलो, समझ में आ रहा है क्या? when we write this, आप लोग जब ऐसे लिखते हो dx² dx और यहाँ पे x की जब लिमिट पुट करते हो 1 to 2, तो यहाँ पे अगर x के लिमिट हो गए तो ही आप लोग विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करोगे. ये तो नो? Yes, sir. और अगर यहाँ पे ऐसे t के लिमिट अगर दिए हो गए आपको तो आप कैन यू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dx? यस और नो? ऐसा कर सकते हो क्या कि लिमिट्स t के दिए बट आप लोग विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हो? इज दिस पॉसिबल?
बोलो। हेलो खुशी, अभय, राजीव। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डीएल ये लिमिट आ रहा है। इस केस में क्या दिख रहा है कि ये जो इंटीग्रेशन है ना ये टू डीएल है, जो कि ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे लिमिट जो है वो थीटा की दी है और आप लोग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डीएल कर रहे हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए, डीएल की जगह हमें डी थीटा चाहिए। आर यू ओके? आर यू रीडिंग इट एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, तो अब देखो क्या करते हैं, थोड़ा सा अभी डीएल को हम लोगों को डी थीटा के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो फर्स्टली कैन यू टेल मी कि व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा क्या होगा? देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस और नो, ये वाला, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज एंगल थीटा। so can we find cos theta? cos theta is adjacent side upon hypotenuse, दिस और नो? तो adjacent है a upon hypotenuse है ये, मतलब क्या r, दिस और नो? बोलो जल्दी। Yes, sir. तो इसका मतलब हमें r की वैल्यू मिल गई, यहाँ से r की वैल्यू क्या है, a upon cos theta, yes or no? बोलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, और एक चीज है कि सपोज मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये इस एलिमेंट का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा, मतलब परपेंडिकुलर जहाँ पे गिर रहा है उस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं वो एल यूनिट जितना है। उसकी जरूरत नहीं है हमें, बट स्टिल और जस्ट और कैलकुलेशन से हम लोग क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग एल मान लेते हैं। चलेगा? इज इट ओके? इज देयर एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. You can assume it anything, okay? मैं सिर्फ एल मान रहा हूँ, आप लोग उसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी मानना चाहो मान सकते हो। उसकी वैसे भी जरूरत नहीं है, फिलहाल बस उसको एक छोटा सा कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमें उसका यूज करना है, इसीलिए मैं इसको मान लेता हूँ ये जो एलिमेंट है इस परपेंडिकुलर से ए के डिस्टेंस पे है। ओके, बोलो। Yes, sir. So now with the help of that can we find tan theta? Tan theta क्या होता है? Opposite upon adjacent, yes or no? Tan theta is opposite upon adjacent. Yes, sir. हाँ, तो tan थीटा मतलब ये अपोजिट साइड कौन सा है? देखो इस थीटा का अपोजिट साइड कौन सा है? ये l, ये तो नो, l अपोजिट और एडजेसेंट कौन सा है? a, so can we write this as a l upon a, side opposite to theta is l and side adjacent to theta is a, so l upon a, opposite upon hypotenuse, hypotenuse upon adjacent, ये तो नो, true? Yes, sir. Yes. हाँ, अभी बात बताओ, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल सकती है? l की वैल्यू मिलेगी। Can we get the value of L here? L is a tan theta. Okay? बोलो, L is a tan theta. Yes, sir. मतलब ना ये a डिवाइड कर रहा है, आगे जाके मल्टीप्लाई कर देगा सेम भी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने ये लिख लिया, मैं इसे रब करूं? Everyone? Yes, sir. हाँ, इसे याद रखना, इसका यूज करना, इसे तो सॉल्व करना है। बट स्टिल अब एक बात बताओ, अगर हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया इस इक्वेशन को, इफ यू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अगर थीटा के विद रिस्पेक्ट में ये इसको डिफरेंशिएट किया तो ये क्या आएगा? dl बाय d थीटा। ये तो नो, हमने क्या किया है, l को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट किया, मतलब dl बाय d थीटा आएगा, ये तो नो, इक्वल टू d बाय d थीटा ऑफ a tan थीटा। ट्रू, इजंट इट? डेरिवेटिव तो आप पता है ना? Yes, sir. हाँ चलो, a तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। tan थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव क्या आएगा? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा? Yes, sir. Sec square theta. sec स्क्वायर थीटा, ये तो नो, बराबर? Yes,
तो dl by d थीटा की वैल्यू क्या मिली हमें a into sec square थीटा. Is that okay? Yes, sir. So now from this equation can we get the value of dl? dl की वैल्यू मिलेगी क्या हमें इस इक्वेशन से? एक बात बताओ, यहाँ पे d थीटा जो है वो डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई चलोगे, थीटा जो था वो यहाँ पे डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे जाके उसने क्या किया, मल्टीप्लाई करेगा ना. यस सर बोलो. तो अब हमें मिली क्या, dl की वैल्यू प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी वो इक्वेशन में, तो वी गॉट dl इन टर्म्स ऑफ d थीटा. ये तो नो, अब dl हमें d थीटा के टर्म्स में मिला है, तो नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट. इज दैट ओके एवरीवन? Yes, sir. तो ऊपर का रफ करूं मैं इसे. बोलो Yes, sir. एवरीवन, can I erase this? Yes, sir. तो इक्वेशन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ dv. वो इक्वेशन क्या था देखो, वाज इंटीग्रेशन ऑफ -π2 to π1, ये थीटा के लिमिट से, और इक्वेशन क्या था वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू i cos थीटा dl अपॉन r स्क्वायर. यही इक्वेशन था, ये सब लो बोलो. Yes, sir. ये हमें सॉल्व करना था ना, और ये dl प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स थीटा के है और विद रिस्पेक्ट टू dl इंटीग्रेट कर रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता. यहाँ पे dl की जगह हमें क्या चाहिए, d थीटा चाहिए. तो हमें ये वैल्यू मिली, देखो dl की वैल्यू क्या मिली है, a sec square थीटा, और r की वैल्यू क्या मिली थी हमें, a अपॉन cos थीटा. ये सब लोग यही मिली थी ना, r की वैल्यू a अपॉन cos थीटा यहाँ पे निकाली थी हमने. बोलो. Yes, sir. तो पुट करो ये वैल्यू सारी, -π2 to π1, लिमिट एज इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो होगा उसको एज इट इज रख दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, i एज इट इज, cos थीटा एज इट इज. हाँ, r की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, a अपॉन cos थीटा. ये सब लो, तो a अपॉन cos थीटा होल स्क्वायर, r स्क्वायर की जगह क्या आया, a अपॉन cos थीटा होल स्क्वायर. इज दैट ओके? Yes, sir. और dl की जगह क्या आएगा, dl की जगह आएगा a sec square थीटा d थीटा. इज दैट ओके? Yes, sir. बस कुछ नहीं, वैल्यूज पुट कर दी मैंने, जिसकी वैल्यू dl और r की वैल्यूज अवेलेबल थी मैंने यहाँ पे पुट कर दिया. एनी प्रॉब्लम हियर, एनी डाउट? अब देखो क्या होता है, ये ऐसे ही रख दो. अच्छा पहले काम करते हैं, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता है. तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट था, ये तो बाहर आ गया. करंट भी कांस्टेंट है, इजंट इट? i इज आल्सो कांस्टेंट हियर, ये जो i होगा. और इंपॉर्टेंटली ये जो a स्क्वायर होगा, अगर इन दोनों स्क्वायर को आप लोग अलग अलग लोगे तो ये a स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा आएगा. ये सब लोग बोलो जल्दी. एवरीवन, हेलो. Yes, sir. क्या होगा, ये a स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा होगा, तो a स्क्वायर जो होगा वो कांस्टेंट है ना, तो मैं a स्क्वायर भी बाहर निकाल देता हूँ. a स्क्वायर बाहर निकाल लिया, ये क्या बचा, इंटीग्रेशन -π2 to π1, यहाँ पे बचा cos थीटा. ये cos स्क्वायर थीटा जो था वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था, तो ये ऊपर जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा, मतलब ये क्या बना, cos क्यूब थीटा बना. ये सब लोग Yes, sir. देखो, ये जो नीचे वाला cos थीटा था वो डिनोमिनेटर की भी डिनोमिनेटर में था, तो ये cos स्क्वायर बन के ऊपर चला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो cos स्क्वायर इनटू cos क्यूब थीटा. यहाँ पे जो a वो भी बाहर आ जाएगा, इसको भी बाहर निकाल लो, ये a से x स्क्वायर थीटा वाला a
बाहर निकल गया कांस्टेंट है, और ये क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इज इट ओके? Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ये छोड़ दो। सेक इज 1 अपॉन कॉस, बोलो। Yes, sir. Yes, मैं सेक स्क्वायर sir. थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बताओ। हाँ सर. देखो क्या कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एक कॉस बचेगा क्योंकि यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे एक कॉस थीटा बचेगा, ये कर दो। Yes, sir. तो देखो तो क्या आता है, इंटीग्रेशन करके देखो। अब यहाँ पे देखो ये a और ये एक a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा u नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज I एज इट इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एक a बचा है, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू टू पाई वन, यहाँ से cos स्क्वायर गए तो एक cos बचा, cos थीटा d थीटा। इधर ओके? Yes, sir. हाँ। नाउ डू यू नो फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन? cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है? Sin theta. cos थीटा इज sin थीटा, गुड। तो ये क्या बचेगा sin थीटा, लिमिट क्या होगी इसके, लोअर लिमिट है माइनस पाई टू और अपर लिमिट है पाई वन। इधर ओके? Yes, sir. इसे रब Yes, कर sir. दूं मैं, should I rub हाँ this? सर. बस अभी तो बहुत इजी है, ये क्या होगा फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एल ई आई अपॉन ए एच ई। पहले हम लोग क्या पुट करते हैं, थीटा की जगह अपर लिमिट माइनस थीटा की जगह लोअर लिमिट, यस और नो? Yes, sir. तो पहले क्या आएगा sin पाई वन माइनस sin ऑफ माइनस पाई टू, यस और नो? पहले अपर लिमिट पुट किया माइनस लोअर लिमिट पुट किया, इधर ओके? Yes, sir. Yes, sir. और ये क्या बचा, ये वापस आई थी। हमें पता है sin माइनस थीटा इज व्हाट, क्या बताओ? sin एक ऑड फंक्शन है, तो sin माइनस थीटा इज ऑलवेज माइनस sin थीटा, ये तो नो? मतलब sin से एंगल का जो नेगेटिव साइन अगर होगा ना, नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, इज दैट ओके? ट्रू? Yes, sir. तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिव साइन था, ये sin पाई वन तो ऐसे ही रहेगा, ये जो नेगेटिव साइन है ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर अगर आ गया तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या बन जाएगा, Positive. पॉजिटिव sin पाई टू, 5. is that okay? So this is Yes. the value of b, okay? तो ये है टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू द होल वायर। देखो वायर साबित ने इसलिए कहा था क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो वापस मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ इनमें से क्या 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 है, मतलब व्हाट आर द पैरामीटर्स हियर। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस होल फाइनाइट वायर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मतलब क्या कि जो वायर होगा उसका लेंथ फाइनाइट होना चाहिए, मतलब उसके दोनों एंड पॉइंट हमें विजिबल चाहिए। वी कैन फाइंड दिस टू एंड पॉइंट, यस और नो? अगर इनफाइनाइट हुआ तो ये एंड पॉइंट हमें दिख सकता है क्या? बोलो। नहीं सर. है ना? तो ये वायर पहले तो फाइनाइट होना चाहिए, उसके बाद उस इस पूरे फाइनाइट वायर की वजह से अगर किसी पॉइंट पे पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालना है, देन दैट फार्मूला इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a sin phi 1 plus sin phi 2। अभी व्हाट इज I? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज कांस्टेंट, ओके? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, बोलो। हेलो एवरीवन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है कि नहीं? Yes, sir. What is I? I is the current flowing through this wire, yes or no? Yes, sir. And what is A? A is the perpendicular distance between this point and this line wire, okay? What is A? A इसका लेंथ नहीं है, इसका लेंथ नहीं है, इसका लेंथ भी नहीं है। A is the
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस वायर एंड दिस पॉइंट. ओके, ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था ना, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग ए मानते हैं. ओके, Yes, sir. तो गलती से कहीं पे भी अगर ये डिस्टेंस आप लोगों ने ए लिया या फिर ये और ये ए लिया तो गलत हो जाएगा. तो ऑलवेज रिमेंबर वेयर ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड दिस वायर. ओके, इसके बाद व्हाट इज साइन फाई 1. पहले तो फाई 1 क्या है? फाई 1 इज द एंगल बिटवीन अपर एंड पॉइंट द लाइन ड्रॉन. मतलब जो हम लोग अपर एंड पॉइंट को पॉइंट से अगर इस पॉइंट से अगर ज्वाइन करके जो लाइन बनाते हैं ना, परपेंडिकुलर से उसका एंगल मेजर करना है. ओके, वी हैव टू मेजर द एंगल फ्रॉम परपेंडिकुलर टू द अपर एंड. इज इट ओके? Yes, sir. उसको हम लोग फाई 1 बोलेंगे. एंड व्हाट इज फाई 2? फाई 2 इज द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड द लोअर एंड. परपेंडिकुलर से वापस निचली डायरेक्शन में मतलब डाउनवर्ड जाएंगे हम लोग और लोअर एंड तक अपना पूरा ट्रेस करेंगे. So whatever that angle is phi 2. Is that okay? Yes, sir. Are you getting everything is easy? Okay, बहुत easy है. अभी ये सॉल्व करेंगे तो बहुत easy है. यहाँ पे कुछ डाउट है? बोलो, any doubts? No, sir. हाँ, अभी इसमें इसके नीचे लिखो. ठीक है, मैं कुछ 2 पॉइंट्स में लिख के देता हूँ, वो इसके नीचे आप लोगों को लिखना है. ओके, so right, first important point that thing must be the perpendicular. They must be the perpendicular distance between point P and wire. Okay, ये जो होगा वो पॉइंट P और वायर के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए. और सेकंड पॉइंट जो होगा, सेकंड इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एंगल फाई 1 और फाई 2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेस होने चाहिए, मेजर होने चाहिए. बराबर, बिकॉज फाई 1 वी ट्रेस इन अपवर्ड डायरेक्शन और फाई 2 को हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस किया है. ये सर दो बोलो. अभय, हृदय, खुशी, अजीत. Yes, sir. दोनों कि दोनों एंगल्स को हमने एक को ऊपर से एक को नीचे से, मतलब दोनों एंगल्स को हमने अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेस किया था. तो बोथ द एंगल्स फाई 1 एंड फाई 2 must be traced in, traced नहीं, must be measured है ना, measured in opposite direction. Okay, Yes, sir. हाँ, सबका ध्यान है? हो गया लिख के? Yes, sir. अब ये ध्यान दो, इम्पोर्टेंट मैं चीज बोल रहा हूँ आप लोगों को कि एग्जाम में अगर ये डेरिवेशन आ रहे हैं ना, देखो मैं आप लोगों को डेरिवेशन सिर्फ मैथमेटिकली करवा रहा हूँ. ठीक है, इसका मतलब आप लोगों को अगर एग्जाम में लिखना है तो ऐसे कि ऐसे नहीं लिखना है. आप लोगों को अच्छे से डिस्क्रिप्शन देके लिखना है कि स्टार्ट ऐसा करना पड़ेगा आपको कि लेट अस कंसीडर अ वायर हैविंग फाइनाइट लेंथ. उसके बाद कंसीडर अ पॉइंट which is at a distance of whatever is the distance a from the perpendicular line, whatever it is. आप लोग जो भी कर रहे हो ना डेरिवेशन में, सबसे इंपॉर्टेंट बात
आप लोग जो भी कुछ कर रहे होगे डेरिवेशन में, वॉट एवर मेथड यू आर परफॉर्मिंग, यू शुड राइट इट फर्स्ट. ओके, समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि टेकिंग डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड. ऐसे आप लोगों को हर स्टेप में लिखना पड़ेगा कि आप लोग क्या कर रहे हो. सिर्फ मैथमेटिकली लिख के नहीं चलेगा, ठीक है? अभी यहाँ पे ऑब्वियसली जगह उतना नहीं है और मैं हर पॉइंट को लिख के नहीं दे सकता आप लोग को, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ. बट यू गाइस टेक केयर ऑफ दैट. अच्छा, इसमें अभी कुछ प्रॉब्लम है, एग्जांपल ले ले. Yes, sir. Okay, first example. ओके, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है. एक वायर दी है आप लोगों को, जब गिवन अ वायर थ्रू व्हिच 2 एम्पीयर करंट इज फ्लोइंग. एक वायर में से 2 एम्पीयर इतना करंट फ्लो हो रहा है. उसके बाद क्या? So due since there are flow of electrons, flow of charges, it means it will create a magnetic field around itself. There is another point P, which is at a distance of 10 meter from this wire. ये perpendicular distance दिया है आप लोगों को. You have given the perpendicular distance between this point P and the wire, which is 10 meters. Is that okay, everyone? हेलो, क्या तक समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, इसके बाद ये जो अपर एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसका एंगल क्या है परपेंडिकुलर से 30 डिग्री. लोअर एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगा, उसका एंगल दिया है परपेंडिकुलर से, व्हिच इज 45 डिग्री. यू सिंपली हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P. पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है. अच्छे से ध्यान दो, बहुत इजी क्वेश्चन है. तो सिंस वी हैव मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, सबसे इंपॉर्टेंट ये तो फाइनाइट लेंथ का वायर है, बराबर? यस और नो? दिस वायर इज हैविंग फाइनाइट लेंथ. अभय, खुशी, हरदेव, राजीव, आर्या. यस सर. फाइनाइट. हाँ, तो फाइनाइट लेंथ अगर वायर होगा और किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो वी नो द फॉर्मूला. V is mu naught upon 4 pi I upon K sin phi 1 plus sin phi 2. yes or no? यस सर. हाँ, बस वैल्यू पुट कर दो. mu naught upon 4 pi as it is. what is the value of A? I की वैल्यू कितनी है? 2A. 2 एम्पीयर. तो 2 divided by what is A? how much is it? A कितना दिया है? 10 मीटर. what is phi 1? phi 1 कितना है? 30 डिग्री. 30 डिग्री plus phi 2 is 45 डिग्री. 45 डिग्री.
क्या आएगा वैल्यू 0.45 सीरीज, ये 1/5 हो जाएगा बराबर। sin 30 is 1/2, 1/2, sin 45 is 1/√2. तो फाइनली वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करने की आएगी √2 + 2, तो μ0/4 into 1/5 ब्रैकेट में क्या आएगा 2 2 plus √2, 2√2. बराबर। मतलब ये आएगा μ0/4 को आई लिख रखो 1 ये क्या आएगा 5 is 10 √2 into 2 plus √2, ओके। Yes sir. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा बताओ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? बोलो। अभय, खुशी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? टेस्ला ना, यस और नो? टेस्ला मतलब क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप लोग इसे टेस्ला लिख सकते हो, यस और नो? Yes sir. हाँ। इजी था एग्जांपल एकदम, सिर्फ फॉर्मूला देख के वैल्यू पुट करनी थी, isn't it? हरदेव, any Yes, doubt? खुशी, राजीव, no sir. डन? रब करो इसे। Yes sir. Okay, another example. You have given this square. तो एक स्क्वायर दिया आपको, स्क्वायर ऑफ साइड a यूनिट, ओके। a यूनिट इतना साइड दिया इस स्क्वायर का, ओके। हाँ, एक इम्पोर्टेंट रह गया, पिछला जो क्वेश्चन था वो इनकम्प्लीट है अपने, स्टिल वन इम्पोर्टेंट थिंग, तो ये वायर लिया था, ये पॉइंट और ये एंगल लिया था, दिस इज 30 डिग्री, दिस वाज 45 डिग्री, यस और नो? पिछले एग्जांपल के बारे में, और यहाँ से 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा था, यस और नो? Yes sir. हम लोगों ने मैग्नीट्यूड तो लिखा उसका, बी का जो है वो मैग्नीट्यूड ही तो मिला है हमें उसको भी, यस और नो? डायरेक्शन देना तो रह गया, क्या बताओ इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का? करो अपना थंब टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्लिंग हैंड, तो पी पे डायरेक्शन क्या होगा बताओ? Inside. हाँ, Inside. इनसाइड मतलब इनवर्ड, तो आंसर कैसे लिखना है? दिस बी व्हाटएवर द वैल्यू इज टेस्ला इनवर्ड इन डायरेक्शन, ओके। आंसर में ये एक और सेंटेंस ऐड कर दो, इनवर्ड इन डायरेक्शन, बराबर ना? मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे इनवर्ड जा रहा है, ओके। Yes sir. एवरीवन आर यू गेटिंग? Yes sir. Yes sir.
Okay, the second example. We have this square having side A units. हर साइड का जो लेंथ होगा वो A यूनिट जितना मेजर का दिया है. There is a center of this square. इस square का जो ये जो मिड पॉइंट होगा तो सेंटर तो नहीं बोल सकते हम लोग. But still this point, there is a point P which lies along both the diagonals. जो जहाँ पे दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट है ये पॉइंट P. Okay. And what is the question? अच्छा, करंट भी दिया है, करंट का डायरेक्शन ऐसे दिया है, I current is flowing to this wire. समझ में आ रहा है क्या? ये क्लोज वायर है, ये एक लूप है, ये सब लोग इसको लूप कहते हैं हम लोग. बोलो, isn't it? Yes sir. तो एक लूप आपको दिया है जो स्क्वायर के शेप में है, जिसमें से I करंट ऐसे फ्लो हो रहा है. And there is another point P inside that loop. तो आप लोगों को पूछा है कि फाइंड सेम क्वेश्चन, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. इस पॉइंट पे आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. ध्यान दो, ये एग्जांपल मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, अगला वाला जो एग्जांपल होगा वो आप लोग सॉल्व करना. फाइन, इज इट ओके? Yes sir. अच्छे से ध्यान दो, बहुत इजी, कुछ भी नहीं, बहुत इजी. सिंस वी नो, अगर हम लोगों ने सपोज एक एक एलिमेंट कंसीडर करते जाते हैं, अगर हम लोग मानते हैं कि ये एक वायर है, सिर्फ अभी ये निचला वाला जो वायर होगा ना पोर्शन, इसको ही कंसीडर करते हैं, बाकी को भूल जाते हैं हम लोग. So since we can say that this much portion is a finite wire, yes or no? This is a wire having finite length. बोलो. हाँ sir. हाँ. Yes, sir. हमारे पास फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड के लिए when the wire is finite. For that what we need, हमें क्या क्या, हमें दो चीजें चाहिए. एक तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर और दूसरा मतलब वो एंगल. yes or no? Yes sir. हाँ. तो हम लोग पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस को है ना वो ड्रॉ कर देते हैं. So let us draw this perpendicular. Is it? तो मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर, ठीक है, दिख तो नहीं रहा वैसे, बट स्टिल दिस इज द परपेंडिकुलर. ओके. अच्छा, हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए टू यूज दैट फॉर्मूला. यस और नो? Yes sir. हाँ. और उसके बाद क्या चाहिए, वो दोनों एंगल्स भी चाहिए. So to get the angles, what we need to do? We need to join both the end points of the wire with that point. Yes or no? इस पॉइंट से हमें दोनों के end point को इसे join करना पड़ेगा. बराबर कर दिया? Yes sir. ओके. तो how much this angle is? मतलब ये दोनों एंगल कितना है? 90 degree. ये एंगल कितना है? 60 ठीक है. degree. अरे कितना? खुशी, how much is it? How much is it? 45, sorry. Yes, good. 45. Obviously ना, ये डायगोनल है ना. Yes or no? बोलो अभय, this is a diagonal or not? Yes, sir. तो डायगोनल क्या करता है? हाफ पार्ट में डिवाइड करता है ना. अगर ये पूरा 90 डिग्री डायगोनल हाफ में ब्रेक करेगा तो ये 45. इसके लिए ये एंगल कितना बना है? हाउ मच दिस एंगल इज? ये 90, ये 45, तो ये कितना होना चाहिए? फोर्टी फाइव होना चाहिए ना. ये भी 45. ये सब नो? Yes sir. पता है ना, ट्रायंगल में तीनों एंगल्स की एडिशन 180 डिग्री. तो ये 90, ये 45, तो बचा क्या? ये भी 45 बनेगा. सिमिलर इन दिस केस, या ये 90, ये 45, तो ये भी कितना बना? 45 बना. ये सब नो? Yes sir. Yes, sir. तो फाइबर क्या था? फाइबर मतलब अपर एंड से जो एंगल बनता है उसका एंगल. तो फाइव 1 is 45 and फाइव 2 is also 45. Yes or no in this case? Yes, sir. Yes sir. हाँ, सिर्फ फर्क इतना है, पिछले एग्जांपल में
वायर ऐसे वर्टिकल था, इस केस में वायर ऐसे हॉरिजॉन्टल है, बस बाकी कुछ नहीं, बाकी से सब सेम है, ठीक है। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग, डू वी नो दिस डिस्टेंस P से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना होगा? अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा डिस्टेंस कितना है? ये पूरा स्क्वायर का वर्टिकल लेंथ कितना है? ए यूनिट दिया है, बराबर। इसका मतलब ये तो उसका हाफ हो गया ना, तो ये कितना बनेगा? टू a by 2। So now we got the vertical distance, the perpendicular distance, sorry, we got the perpendicular distance and we got both the angle। इसका मतलब हम लोग अभी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यस सर। ओके, इसको मान लेते हैं B at point C due to the फर्स्ट कंपोनेंट। काम करते हैं, इस वायर को, इसको फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं, मतलब इस वायर को 1 नाम देते हैं, इस वायर को 2 नाम देते हैं, इसको 3 और इसको 4। चलेगा क्या? इन दिस लूप देयर आर 4 वायर्स, कैन वी अज्यूम इट? यस सर। Yes, sir. फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड और फोर्थ ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लूप इज क्या आएगा? इसको B1 बोल देते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस वायर इज B1, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस वायर इज B2 और सो ऑन। इज दैट ओके? यस सर। क्या है फॉर्मूला? देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A sin phi1 प्लस sin phi2, ये फॉर्मूला था, बराबर। यस सर। यस सर। चलो वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I तो उतना ही है, A की वैल्यू कितनी हो गई? ए बाय 2। A by 2, गुड। A by 2, थीटा 1 की थीटा phi 1 कितना है? 45 1 रूट 2। और ये भी 45, phi 2 इधर तो 45, ये तो नो, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है सीरीज, ये 2 जो ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये तो नो। 2 आया अपॉन ए। हाँ, ये 1 by root 2, 1 बाय रूट 2। मतलब ये कितना बना? 2 by, ये तो नो, ये 1 by root 2 प्लस 1 by root 2 is 2 by root 2। यस सर। हाँ, क्या कर सकते हैं और? इसको कैंसिल कर दे, 2 को क्या क्या मिला वैल्यू? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a, और ये यहाँ पे क्या बचा? √2 और √2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक √2 बचेगा, ये तो लो, यस सर। बराबर ना। 2 कैन बी रिटन एज √2 into √2, एक √2 कैंसिल हो गया, बचा क्या है? 1 √2, मतलब क्या? ये 2 एज इट इज into √2 into I, कैन बी राइट लाइक दिस, उस √2 को यहाँ पे लेके आए हैं अंदर। इधर ओके? यस सर। Yes, sir. हाँ, अभी एक बात बताओ, सिंपली लॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर इस फर्स्ट कंपोनेंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इतना, तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कंपोनेंट की वजह से भी सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये सब लोग। यस सर। क्योंकि देखो ना, सिमेट्री है। अगर आप लोग सेकेंड कंपोनेंट की वजह से फाइंड करने चलेंगे, वी नीड टू जॉइन दिस, वी नीड टू फाइंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑब्वियसली ये भी कितना होगा? a/2 होगा, pi1 कितना होगा? 45 ही होगा, और ये भी 45 होगा। इट मींस एवरीथिंग इज सेम फॉर थर्ड कंपोनेंट, फोर्थ कंपोनेंट also phi1 और phi2 45 ही होंगे, और ये डिस्टेंस जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो भी a/2 ही होगा, ये समझ लो। यस सर। मतलब इन शॉर्ट, अगर हमें सारे वायर्स की वजह से, मतलब चारों कंपोनेंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सिंपली हम लोग इसे 4 टाइम्स ऐड कर सकते हैं, दिस ड्यू टू B1 प्लस दिस ड्यू टू B2 प्लस दिस ड्यू टू B3 एंड दिस ड्यू टू B4, ये समझ लो, यस सर। बराबर ना। तो सिंपली ऐसे बोले, सिंपली ड्यू टू सिमेट्री, ये सिमेट्री की वजह से हो रहा है, ठीक है, ये स्क्वायर है और ये सिमेट्रिक होता है ऑब्वियसली। तो ड्यू टू सिमेट्री, टोटल मैग्नेटिक फील्ड
टोटल मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना आएगा, इसको सिंपली 4 टाइम्स ऐड करना है, फर्स्ट कंपोनेंट की वजह से प्लस सेकंड कंपोनेंट की वजह से प्लस थर्ड कंपोनेंट की वजह से और प्लस फोर्थ कंपोनेंट की वजह से, ये सॉर्ट लो। यस सर। तो 4 टाइम कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 रूट 2 आई अपॉन ए, कितना लोगे, यस सर। और इसका यूनिट होगा Yes, कितना, sir. या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। एवरीवन समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, अब क्या बचा, डायरेक्शन। डायरेक्शन बचा। अब ये तो मैग्नीट्यूड हमें मिल गया, डायरेक्शन देखते हैं। पहले कंपोनेंट की वजह से पहले फाइंड करते हैं। करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, सो इसको इस डायरेक्शन में हम करेंगे। हाथ किस डायरेक्शन में आ रहा है देखो, इनवर्ड। वापस देखो अच्छे से, इनवर्ड्स। इनवर्ट कैसे, Outward. कर्व मेरा हाथ किस डायरेक्शन में कर्व हो रहा है देखो, Sir, आउटवर्ड हो outward. रहा है ना, मेरी तरफ आ रहा है, ये तो अपनी तरफ आ रहा है। अब भाई यस सर, आउटवर्ड है। समझ में आ रहा है ना, हम इस डायरेक्शन में कर लिया, करके देखो आप लोग, और पॉइंट बी से देखो हाथ अपनी तरफ कर्व हो रहा है, मतलब क्या, कि इस डायरेक्शन में फर्स्ट कंपोनेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड है, ये तो लो। यस सर। सेकंड कंपोनेंट की वजह से देखो, तो अब ऊपर की डायरेक्शन में कम कर लिया, कर्व देखो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, Outward. आउटवर्ड हो रहा है यहाँ पे भी। थर्ड केस में देखो, थर्ड कंपोनेंट में देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आउटवर्ड हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में थंब गया, और ये देखो मेरा हाथ कौन से डायरेक्शन में कर्व हो रहा है देखो, ये भी आउटवर्ड आ रहा है। फोर कंपोनेंट की वजह से भी देखो इस डायरेक्शन में, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में कर्व हो रहा है, ये तो नो। Yes, sir. यस So in सर। short, due to this whole loop, the magnetic field is directed outwards or inwards? आउटवर्ड। Outwards. Directed outwards. Is that okay? यस सर। Yes, sir. हो गया सर। Done? यस सर। Like, for example, now you guys will try. आप लोग try करो इसे, easy एकदम। Suppose this is an equilateral triangle. ये क्या है? ये equilateral triangle है। Let's name it A, B, C कुछ तो कैसा। Current direction दिया है I, I, I। करंट का डायरेक्शन भी दिया है। At this point, at the centroid of this triangle, इस triangle में जो centroid होगा इसको नाम देते हैं P। You have to find the magnetic field at point P. Same question. Find magnetic field at point P. Just इस equilateral triangle का जो साइड होगा वो सेम A यूनिट कितना होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब क्या, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, ये सब लोग। Yes, यस। sir. तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। इजी क्वेश्चन एकदम।
डन। भाई खुशी हो गया क्या? यस सर। सर उसका डायरेक्शन क्या आएगा? क्या है डायरेक्शन बताओ, देखो ना, आउटवर्ड आएगा, आउटवर्ड। आउटवर्ड ही आएगा ये। हो गया हरदेव, खुशी, हरिया? हो गया सर। Yes, sir. डन। सिंपली आप लोगों को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, इसे ठीक, इस वायर की वजह से जितना भी आया होगा उसको सिंपली 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ऐसा हो? यस सर। ओके गुड, ठीक है। सो आज यही रुकते हैं, कल हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कल का जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि हमें इनफाइनाइट अगर वायर दिया होगा, if the wire is infinite or semi infinite, then in that case what is the magnetic field, ये हमें डिराइव करना है। इज दैट ओके? यस सर। ओके चलो मिलते हैं कल। थैंक यू सर। बाय सर।